Hello everyone. In this part of the series, we are going to begin with ordinal utility analysis. So, this was given by J.R. Heeks, and it is a revised or maybe a better version of the cardinal utility analysis. Cardinal utility जो थी हमारी, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ी थी, उसमें ये था, उसका जो ड्रॉबैक था जिसको ठीक किया गया है ऑर्डिनल यूटिलिटी में, दैट इज कार्डिनल वाले में वो क्वांटिफाई करता था कि आपको 5 पसंद आया। सैटिस्फैक्शन को वो एक नंबर में डिनोट करता था, बल्कि ऑर्डिनल यूटिलिटी वाले ये बोलते हैं लोग कि ऐसा नहीं होता। आम जिंदगी में हम नंबर नहीं सोचते हैं, बल्कि हम ये सोचते हैं इससे बेहतर। यहाँ पे यही पूरा टॉक है कि कैसे वी आर रैंकिंग we rank various alternative combinations in terms of more or less of the utility. So यहाँ आप देखेंगे कि this is what is the entire theory of indifference curves. ठीक है? This downward sloping blue line is your indifference curve, and indifference curve का मतलब ये होता है कि any point on this curve, say any selection, may you be on A or B or C or D, आप किसी भी पॉइंट पे हो, आपकी यूटिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप चाहे ए पे हो या बी पे हो, आपके लिए उतनी ही संतुष्टि है either of the combinations पे। Now let's understand what it really means. Okay, this is more of an abstract sort of a concept. Okay, so धीरे धीरे सिंक इन होगा, लेकिन हो जाएगा। Now see, इसमें उन्होंने दो कॉम्बिनेशन सेट्स लिए हैं। one side is the mangoes, other side is the bananas. Okay, मैंगो और बनाना की क्वांटिटी है बेसिकली ये। ठीक है, सो ये कह रहा है कि कितना क्वांटिटी हम दो चीजों का हम कंज्यूम करेंगे सच दैट वी आर एट अ ऐसा लेवल, मतलब व्हाट आर द कॉम्बिनेशन सेट्स व्हिच गिव अस इक्वल यूटिलिटी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है for certain consumers, like for certain somebody or for a certain sort of market, 15 mangoes and 1 banana has the same amount of utility for them like 9 mangoes and 4 bananas. Okay, तो अगर हम ये लिखेंगे एक मैथमेटिकल टोन में, सो इंडिफरेंस कर्व का मतलब है ए यूटिलिटी यू ए इज इक्वल्स टू यू बी is equals to UC is equals to UD. ठीक है, इकोनॉमिकली मतलब इकोनॉमिक्स में दिस इज द jargon that we use. ठीक है, UA, this is what we are writing most of the time. So anyway, this is not very much relevant, but UA का मतलब ये है कि utility of A. okay, तो यहाँ पे इक्वेट हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ये पूरी। ठीक है, here it is saying that the points representing bundles on which they give equal utility can generally be joined to obtain a curve like this one. Okay, the consumer is said to be indifferent when he is choosing in between these combinations. Indifferent का मतलब ये नहीं है कि उसको समझ नहीं आ रहा है। Indifferent का मतलब है कि या फिर तो ये ले लूं या फिर ये लूं, बात एक ही है, उसमें वो ज्यादा अपना माथा पच्ची नहीं कर रहा है। ठीक है, it has the same effect on him. So he is indifferent on the different bundles because each point gives him equal utility. All right, now let's discuss why is the shape of the curve in this manner. Okay, now we can see is that this curve is a downward sloping curve. This is because we cannot be here. We cannot be कि 15 ही मैंगो खाने हैं और 2 बनाना खाने हैं, तो हम तो फिर हमारा कॉम्बिनेशन कहीं यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर ये हमारा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया यहाँ पे, फिर 15 ही खाने हैं जी, 3 खाने हैं बनाना, फिर 15 ही खाने हैं मैंगो और 4 खाने, तो कर्व आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आईसीस का मतलब
कुछ बहुत डिफरेंट होता है. दिस इज अ कन्वेंशनल आईसी. ठीक है, एक रूटीन आईसी है ये, नॉर्मल, जैसे जस्ट लाइक डिमांड कर्व्स के भी आपके बहुत तरीके होते हैं. या आई फॉरगॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू. डिमांड कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होते हैं, कुछ डिमांड कर्व्स अपवर्ड स्लोपिंग भी होते हैं, which is a case in Veblen goods. Okay, I'll make a video on that. I apparently forgot about it. So, एक general manner में, this is how an IC is. Okay, what do you really mean by this? To get one more banana, he has to forego some mangoes so that his total utility remains the same. Now, what do you really mean? क्या पता 15 मैंगो और एक बनाना से जब हम कंपेयर करेंगे 15 मैंगो और 2 बनाना, ऑफ कोर्स उसको ज्यादा ही बेहतर लगेगा. He doesn't have to let go of any mangoes and he's getting more bananas too. So that is like he's getting more satisfaction in that, right? तो इसीलिए वो बोलते हैं कि सेम satisfaction रखने के लिए उसको कुछ तो खोना पड़ेगा, कुछ ही has to let go so that वहां से जो उसको compensate हो. ये देखो, लेट्स से उसने मैंगोज लेट गो करे, ठीक है, इतने मैंगोज लेट गो करे, लेकिन उसको एक बनाना का एडिशन करने में maybe that loss is equivalent to this gain, right? So this is what your ICs speak about. Remember this, that this is a map, indifference map, and in an indifference map we can have infinite indifference curves. ठीक है, primarily because we can be somewhere, wait, let me just delete all of this. So yeah, now that we have a cleaner diagram here, I just want to tell you that there can be infinite number of indifference curves here. Okay, although we are going to discuss it in the later half of the video, like in a couple of minutes we're going to go there. So basically the point is this only, that this one IC has one sort of a utility. Let's say it is equivalent to, this is equivalent to k units of utility. Then we can have another IC which is equals to 2k utils. Okay, फिर इससे ऊपर एक तीसरा जिससे और ज़्यादा 3k. ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी इन सब का ये जो हमारा ये बढ़ ही क्यों रहा है. ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये इंक्रीज ही क्यों हो रहा है, यूटिलिटी इंक्रीज क्यों हो रही है. सिंपली इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि देखो यहाँ पे हमने बोला कि लेट्स से कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन हम लोग डिवाइस करते हैं जहाँ पे 15 मैंगोज हों और हमको कुछ खोना भी ना पड़े और हम पे बनानास भी ज़्यादा हो जाएं. तो assuming that we are going to have constant mangoes, so IC2 जो है, जो हमको 2 के यूटिल्स हमको दे रहा है, it has 15 mangoes and 2 bananas. Similarly, IC3 has 15 mangoes and 4 bananas. So if you see, having mangoes की quantity is constant, हमारा ये बढ़ ही रहा है, तो इससे, and we don't have to lose on anything, so that is the reason it's going to give us more utility. ये जो हम phenomena देख रहे हैं इसको हमने एक नाम दिया है, इसको बोलते हैं हम monotonicity of preference. Okay, जो कि हम यहाँ पढ़ोगे नीचे, monotonic preferences. Okay, anyway, getting back to the point over here, the point here is MRS. Okay, तो ये जो हमको खोना पड़ रहा है ना कि कांस्टेंट यूटिलिटी पे रहने के लिए हमको कुछ चीज गंवानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम यूटिलिटी को कांस्टेंट रखते हुए बोलते हैं. ठीक है, सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, कि हमने कितना y खोया कितना x गेन करने के लिए. ठीक है, y
डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, राइट। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट इज हियर ऑल्सो। यहाँ पे बस एक ही इन्होंने एब्सोल्यूट्स का लगा दिया है, ठीक है। सो इट इज मोर ऑफ अ थिंग दैट वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द साइन हियर, बिकॉज इवेंचुअली we are aware of the situation that delta y is going to be negative. अब नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि जी खोना पड़ रहा है ना, कम करना पड़ रहा है, तो ये तो कम ही जाएगा। अब डेल्टा वाई हम ऐसे निकालते हैं, फाइनल माइनस ओरिजिनल। जैसे लेट्स से कि हम एम आर एस ए बी निकाल रहे हैं, ए बी, ठीक है। तो एम आर एस ए बी का मतलब है डेल्टा वाई, मतलब फाइनल क्या है, बी पे पहुंचे ना, मतलब ए से हम बी में पहुंचे, तो फाइनल हम बी पे पहुंचे, तो बी पे हमारे 12 मैंगो है, तो 12 माइनस इनिशियली कितने मैंगोज थे हम पे, 15 थे ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल अगेन, तो फाइनल हमारा 2 है माइनस 1 बनाना। सो दिस इज गिविंग अस -3 अपॉन 1, मतलब -3, तो एम आर एस इज -3, बट every time it is the y is going to be negative only for a well behaved IC, right? तो इसलिए हम उसको एब्सोल्यूट में डाल देते हैं कि MRS should be 3, that MRS should be 3 irrespective of the sign here, because you're aware कि sign जो है it is directioning us, or it's telling us about the direction of the curve, ठीक है। So we can notice that increase हो रहा है हमारा x axis वाला, in other words MRS diminishes with increase in the number of bananas. Now the thing is the MRS constant everywhere? ऐसा है क्या कि हर जगह ये भी 3 3 3? No, that is not the answer. Again the answer lies in utility, कि हमारी want, हमारी desire, हमारी तड़प उस एक एडिशनल कमोडिटी की कितनी है, कि हम कितना और खोने के लिए रेडी हैं। सो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर अगर आप देखें तो फर्स्ट कमोडिटी के लिए वी गाइस आर वेरी एक्साइटेड, बाय द सेकंड कमोडिटी it just loses up a bit, not much, a little bit. By the third commodity, fourth commodity, it just peters out. तो that is the thing कि MRS जो है हमारा वो हाई से लो की तरफ आता है, as we can see here, right? कॉम्बिनेशन A B C D, इनिशियली हमारे पे 1 बनाना, 2 बनाना, 3 बनाना, 4, तो पहले हम 3 मैंगोज गिव अप कर रहे थे, so our MRS was 3:1, राइट। फिर बाद में हम 2 मैंगोज गिव अप करने लगे एक एडिशनल बनाना के लिए, तो हमारा MRS हो गया 2, ठीक है। एंड C से D में जाने में तो हमने बोला जी अब बहुत खाली है बनाना और मैंगोज भी हमको चाहिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1:1 हो गया यूटिलिटी, ठीक है, कि मतलब एक ही हमने फॉरगिव किया और एक ही एक्स्ट्रा मान हमने पाया। तो ये है कि as we see that the MRS diminishes with increase in the number of banana, as the number of banana with the consumer increases, the marginal utility derived from each additional banana falls. समझ रहे हैं? एडिशनली मतलब हर एक उसके साथ जो हमको सुख प्राप्ति हो रही है उस बनाना प्राप्त खाने में, वो हमारी कम होती जा रही है, और अब हमारे लिए मैंगोज थोड़े ज़्यादा प्रेशियस हो रहे हैं, तो हमारे लिए ट्रेड क्या हो रहा है, इट इज़ नॉट वेरी मच इन फेवर नाउ। सो अगर हम पे ज़्यादा बनाना हो रहा है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड विद बनाना भी कम होती जा रही है, और मैंगोज की जैसे हम इसको छोड़ रहे हैं वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। वही है कि जिस चीज़ की कमी होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है ना। जैसे कि एक हिंदी में कहावत भी है कि दूसरे की थाली में घी सबसे ज़्यादा ही लगता है, तो दैट इज़ द एंटायर थिंग अगेन, कि मार्जिनल यूटिलिटी जब आपके पास स्कार्सिटी होती है तब आपको ज़्यादा रहती है, ठीक है।
This tendency of MRS to fall with increase in the quantity of banana is known as the law of diminishing marginal rate of substitution, which is eventually governed by the law of DMU, diminishing marginal utility. अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है? Okay. Now we've already talked about the shape of the IC, which is called convex to the origin. ठीक है? अब अगर यदि आपके पास कभी साइंस नहीं थी तो आपको कॉन्वेक्स कॉन्केव का फेर समझ नहीं आएगा, जो कि थोड़ा साइंस वालों को रिलेटिव एज रहता है क्योंकि वो लेंस वगैरह पढ़ते रहते हैं. नाउ आई टेल यू हाउ डिड आई लर्न इट. तो ये कन्वेक्स इसलिए बोलते हैं कि जो उल्टा हुआ से कॉन्केव, कॉन्केव ऐसा दिखता है कि ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इसको बोलते हैं कॉन्केव. तो अभी देखिए एक केव टाइप का बन रहा है. केव मतलब गुफा, ठीक है? एक जैसे जैसे छोटे बच्चे में जब हम छोटे थे तो एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे थे, उसमें से दिखाते थे कि डेन है एक, तो एक डेन कैसे बन रही है, यूं, ठीक है? और इसके अंदर जो भी है, तो अगर आप देखो ये एक केव टाइप की बन रही है, इसके अंदर इनगल्फ कर रहा है ये चीजें, राइट? तो आप ऐसे याद रख लो कि केव और ये वेक्स, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स टू द ओरिजिन. बट देर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे कन्वेक्स नहीं भी होती है. वहां पे जो आईसी होते हैं, कई आईसीज आपके ऐसे होते हैं, ठीक है? 90, कई आईसीज आपके ऐसे होते हैं, ठीक है? तो अलग अलग शेप इनका क्यों होता है? कुछ आईसीज आपके ऐसे भी होते हैं, ठीक है? वो भी मैं आपको बताऊंगी. सो in case of goods being perfect substitutes, the marginal rate of substitution does not diminish. It remains the same. Now there are two types of goods. One of them is substitute goods and the other is complementary goods. Complementary मतलब दोनों goods की सेल या फिर नो सेल is dependent on each other's price. जैसे पेन और उस पेन की रिफिल. मान लीजिए कि आप पायलट पेन यूज करते हैं और उसकी V7 की आप इंक यूज करते हैं, ठीक है? V7 के उसमें, तो मान लीजिए कि आपके पायलट पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो उससे क्या होगा कि पायलट पेन की डिमांड फॉल कर जाएगी रिलेटिवली थोड़ा, और लोग किसी और पेन पे शिफ्ट कर लेंगे. इससे होगा ये भी कि लोग थोड़ा इंक कम खरीदेंगे, क्योंकि लोग क्या पता वो पेन ही खरीदना बंद कर दें. ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है? तो ये जो रिलेशनशिप दिख रहा है ना कि इसके कारण ये भी, इसकी डिमांड भी फॉल हो गया है, तो इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है? एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जैसे कि टी, कॉफी, पेप्सी एंड योर कोक. मान लीजिए कि पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, तो कोक वाले क्या करेंगे, कोक का प्राइस कांस्टेंट है तो लोग कोक पे शिफ्ट कर जाएंगे. और वहां पे क्या हुआ, कोक ने बिना अपना प्राइस फॉल करवाए अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर ली. So that is a substitute good. All right. In case of perfect substitutes, the MRS does not diminish. It remains constant. ठीक है? So there is no trade-off. It is as seen in this diagram here that the shape of the curve, it is a straight line, downward sloping straight line. Why is that? तो यहाँ पे example इसने दिया है कि here a consumer is indifferent in all combinations as long as the total of 5 rupees coin and 5 rupee notes remain the same. Let's say कि उसके पास दो हैं, एक 5 रुपए का नोट है और एक 5 रुपए का कॉइन है. तो उसके पास पहले एक 5 रुपए का नोट था और एक 5 रुपए का कॉइन था, ठीक है? 8 5 रुपए कॉइन थे. उसके बाद उसने वो बोला कि ठीक है तुम ऐसा करो, एक मुझे नोट दे दो और मेरा एक कॉइन ले लो. तो इवेंचुअली उसके बंडल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरी इंट्रिंसिक वैल्यू उसके पास 5 ही है, मतलब 5 और 9 तो 40 ही रुपए हैं उसके पास कुल मिला के. अब वो 40 चाहे उसके पास कॉइन हो या फिर 40 उसके पास नोट्स हो, इट डजंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि इवेंचुअली उसके पास 40 ही रुपए हैं. तो चाहे वो ए से डी में जाए तो 4 का लॉस करे तो यहाँ पे से 4 उसका कॉइन्स कम हो जाएंगे. दैट्स इट. ऑलराइट. सो इस कारण से उसका ये है कर्व, ठीक है? इन सब उसमें इनका एमआरएस 1 रहता है. ऑलराइट. Now earlier we discussed on monotonic preferences. Again this is exactly what it's saying, that suppose that there is some bundle जिसमें, जो मैंने आपको मैंगोज वाला ऊपर एग्जांपल दिया था कि समझिए कि एक मैंगो कम है और कांस्टेंट है और आपको बनाना भी ज्यादा मिल रहा है विदाउट हैविंग टू लूज. तो ये बोलते हैं कि एक ये कॉम्बिनेशन बन गया ए और एक ए डैश, जो हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा था यहाँ पे, ठीक है? तो इसमें हमारा ए क्वांटिटी ज्यादा है तो
इवेंचुअली जो कंज्यूमर है वो इसको प्रेफर करेगा क्योंकि बेटर मोर, ठीक है। और ही मजा आ जाए अगर ए भी ज्यादा हो और बी भी ज्यादा हो। तो लेट्स से, लेट मी रीड ऑल ऑफ दिस अगेन, ठीक है। अब मैं ये बोल रही थी कि मान लो कि ऐसा एक और बंडल आ गया हमारे पास, कि मान लो क्या है, ऐसे है ही, क्योंकि मैप है ना, ये कोई भी कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी है कि जहाँ पे 16 मैंगोज हैं और दो बनानास हैं, या फिर मान लीजिए 3 बनानास हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे है और इस कॉम्बिनेशन का नाम है ए डबल डैश। सो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा सर, ए के मुकाबले ए डैश अच्छा था, और ए डैश के मुकाबले, क्योंकि इसमें मैंगो भी ज्यादा है बनाना भी ज्यादा है, तो ए डबल डैश ज्यादा अच्छा है। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना कि ज्यादा होना तो और बेहतर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंस या फिर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। Now let's start with the last topic of our video, which is indifference map. Indifference map is, as I've told earlier multiple times, कि एक आईसी कि एक कर्व के ग्राफ के एरिया में बहुत सारे जो आईसीज पढ़ सकते हैं, इनफाइनाइट आईसीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग यूटिलिटी लेवल रहता है अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे। सो अब जैसे फिगर नंबर 2.5 में आप देखो, जो मैप है ये मैप ऐसा दिखा है, एक एरो दिखा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। सो ये अपवर्ड डायरेक्शन में एरो का मतलब ये है कि द पर्सन इज नॉट गोइंग टू चूज अ लोअर आईसी, चांस मिलेगा लोग हायर ही अपग्रेड करते हैं। तो देयर आर सम assumptions that we have taken about human behavior कि more is better, which is monotonic preferences, and दूसरा कि a consumer will always choose a higher IC than a lower IC। तो जो ऊपर वाला आईसी है, नीचे वाले और ऊपर वाला आईसी में हमको चूज करना होगा, तो हम ऊपर वाला आईसी ही चूज करेंगे। ऑलराइट, now the features of IC, very important, we're going to cover it in next video. I promise I will be regular post this video. Alright, goodbye, take care.